راشٹریہ وکاس دیکھ رہے ہیں آپ 1017ویں عرس کا حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے سیدھے ہم آپ کو بہرائش لیے چلتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلیم القدیر الحلیم الجلیل والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعلينا ومن تبعهم ومن أحبهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم أمرين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں روزے پر حاضری دے رہے ہیں لوگ، اور بڑی تعداد میں لوگوں کا سلسلہ جاری گفتگو کر رہے ہیں ہم پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، جو اولیاء اکرام اپنے پاس آنے والوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کچھ ایسی چیز بتاتے، کچھ وظائف بتا دیتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے وہ رابطہ ان کا اپنے رب سے جوڑ جائے۔ اللہ والے بڑے نباز، بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خانقاہ سے ایک ہی بزرگ کے مختلف اوراد ہیں، یہ مرید کو یہ دیتے ہیں، یہ مرید یہ دیتے ہیں، یہ مرید کو یہ دیتے ہیں، بولے ہم کو یہ دیا، ہم کو دیا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے شب و روز کیسے ہیں، یہ اس کی طاقت کیسی، استعداد کیسی ہے اس کے، تو اس کے لحاظ سے وہ نسخہ دیتے۔ جیسے ایک طبیب ایک حکیم معدے کو دیکھ کے انہیں تجویز کرتا، تو ایسے ہی اللہ والے سب کو فیض پہنچاتے، مگر ہر ایک کا فیض کا پہنچانے طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ذکر کرے ہیں، بڑے بڑے مفسرین بھی کرے ہیں، کہ جس کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش حل ہو ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھنا، کیسے سے کیسا آپ کا مسئلہ ہو، مرض ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی مشکل ہو، وہ حل ہوتی۔ تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ، اور 500 مرتبہ جو لا حول پڑھے گا اس کو ہر قسم کی پریشانی سے اس کو راحت ملے گی اور ہر مقدمے میں اس کی جیت ہوں گی۔ اب دیکھیے 500 مرتبہ عام آدمی بھی لا حول ولا قوت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ مقدم بیٹھ کے توجہ ضرورت، چلتے پھرتے انہیں اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کا مسئلہ ہوتا۔ تو ایسے ہی اللہ والے چھوٹے چھوٹے اذکار دے کے اللہ والے جو ہے اللہ کو بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ذاکرین جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ذاکر ذکر اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔
کیا بات؟ ذاکر کی اٹھنے سے پہلے مغفرت ہوتی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ ذکر جہاد میں سر کٹانے سے افضل ہے، جہاد میں سر کٹانے سے افضل ذکر ہے۔ اور میں یہ بات کے آغاز کیا تھا جس آیت سے، اتل ما اوحیا، اس میں تلاوت کی بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کی بات ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم چلتے چلتے آخری میسج بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور حج ادا کرنے کی بات کہی ہے، مگر کہیں بھی کثرت کا ذکر نہیں، کسی بھی عبادت کے لیے کثرت کی شرط نہیں لگائی گئی، مگر جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی بات آئی ہے تو وہاں لفظ کثرت بھی آیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز جمعہ ختم کر چکو تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر بہترین چیز ہے، وہ دل آباد ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ دل ویران ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور اللہ والوں کے ہی وجود سے یہ دنیا کا وجود ہے۔ چمٹیوں سے ہم پوچھے، مچھلیوں سے پوچھے کہ تم لوگ دعا کرتے علماء کے لیے، تم لوگ دعا کرتے جو ہے عالموں کے لیے، اس میں تمہاری کیا غرض ہے؟ تو بولے ہماری یہ غرض ہے کہ ان کے وجود سے ہمارا وجود ہے، اسی لیے ہم ان کے وجود کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارا وجود بھی جاری رہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا فیض۔ تو دنیا میں جو برکتیں رحمتیں ملتی ہیں اللہ والوں کے واسطے سے ملتی ہے، اللہ کے لیے اللہ والا اپنے دوستوں کے لیے اتارتا ہے وہ۔ جی، بہت پیاری بات آپ نے پروفیسر ارشاد فرمائی۔ یہ جو معاملہ ہے رابطہ اور اللہ کے بندوں کا اللہ سے رابطہ، اور یہ فیوز و برکات، پھر بات آتی ہے کرامتوں کی۔ ہم نے ایسا پوچھا تھا، ہمیں یہ جواب ملا، ہمیں یہ فائدہ ہوا، یہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت رہتی؟ اب یہ آج کا دور تو مادی دور ہے، مادیت کے دور میں روحانیت پست ہوتے جا رہی ہے، مگر دیکھیے یہ آواز دبائے دبتی نہیں، روحانی نظام اپنی جگہ موجود ہے۔ اب اس پہ ایخان کی کمزوری کی وجہ سے ہم ادھر آستانوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اللہ والوں سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، یہ اور بات ہے، مگر ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہی ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے مسائل ہو جائیں۔ جب تک کہ ہم روحانی طور پر ہم مضبوط نہیں ہوں گے کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، بلکہ اور مزید اضافہ ہوگا۔ کہ اب حالات حاضرہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظام کی طرف لوٹیں، روحانی نظام کی طرف اللہ سے رجوع کریں، اپنے آپ کو گناہوں کی یہ بخشش کریں اور کثرت سے ذکر کرتے رہیں، اور استغفار اور لا حول کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنے ذکر میں درود شریف کو ضرور شامل کریں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے درود شریف اور استغفار اور لا حول، یہ تین چیزوں کو ساتھ لے کے چلیے، فرائض نماز کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ جی پروفیسر، آئیے ناظرین ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں بارگاہ میں جو پروگرام چل رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ آئیے سیدھے بہرائچ چلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، 2-3 حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وقت نہیں ہے، حضرت کا خطاب خصوصی ہونا ہے، ہم لوگ الحمدللہ میزبان ہیں اور حضرت آج کے خصوصی مہمان ہیں، آپ خطاب فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ کون سے بولو، اے ایمان والو، ایمان والے مخاطب ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب بندہ ایک مومن ہے، ایمان اس کے پاس موجود ہے، انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابھی بات ختم نہیں ہو رہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا، بندہ مومن بھی ہے اور متقی بھی، پرہیزگار بھی ہے۔ ابھی قرآن کریم کا وہ جملہ مقدسہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بندہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحبان زہد و ورع ہے،
साहिबान तकवा और तहारत है, लेकिन अभी कुरान का मंशा पूरा नहीं हो रहा है। फरमा रहा है मेरा रब और हम सब का रब रब कायनात इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, और फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, सुभान अल्लाह, और सच्चों के साथ हो जाओ, सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमा वकूनू मअस सादिक, नहीं नहीं, पूरी जमात, सुभान अल्लाह, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की हर दौर में इंशाअल्लाह जमात रहेगी। हर जमात का अदब और एहतराम जो साहिबाने ईमान है, जो साहिबाने तकवा है, जिनके अकायद कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक है, जो हमारे मशाइख हैं, वो किसी खानवादे से ताल्लुक रखते हो, वो किसी खानका से ताल्लुक रखते हो, हमें खानका और हमें खानवादे पर नजर नहीं डालनी है, हमें कुरान के उसूलों को देखना है, हमें सुन्नत नबवी के उसूलों को देखना है। जिसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो शेख हमारा है और वो आलिम हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका ने रब ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब ये है हर दौर में सच्चों की जमात रहेगी। अल्लाहु अकबर। जमात सहाबा सच्चों की जमात थी, और जमात अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही सच्चों की जमात है। जमात अक्ताब सच्चों की जमात है। जमात अगवास सच्चों की जमात है। गौसे आजम की पूरी जमात सच्चों की जमात है। गरीब नवाज की जमात सच्चों की जमात है। अल्लाहु अकबर। और सैयद सालात मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जितने भी थे सब सच्चे। नाज़रीन, इस वक्त खिताबात का सिलसिला जारी है सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। आइए नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे पर जाएं, जल्द हाजिर होते हैं। मोहब्बतों और अक़ीदतों का सिलसिला हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जारी है। आइए हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं। तारिक, अभी खिताबात का सिलसिला भी जारी है वहाँ पर, और बहुत ही अहम जो है रसूम हैं अभी होने की। क्या आपके पास इस वक्त मालूमात हैं? जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, इस वक्त बारगाह में लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद है। जलसागाह में खिताबात का सिलसिला भी जारी है। जी तारिक। जी तारिक, हम जानना चाहेंगे, इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर और लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, अक़ीदतों का लोगों ने इजहार किया था, खिताबात का सिलसिला भी जलसागाह में जारी है। इस वक्त क्या मसरूफियत है वहाँ पर? जी जी तारिक, आवाज आ रही है? जी तारीख, हम जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पर जो मसरूफियात हैं, खिताबात का तो सिलसिला जारी है और बहुत से लोग पहुँच रहे हैं मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? अच्छा तो मैं पता हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद हैं। तारिक, हम जानना चाहेंगे आपसे, इस वक्त खिताबत का तो सिलसिला जारी है, वहाँ पर मज़ीद जो प्रोग्राम है आज तरतीब दिया गया है और क्या क्या वहाँ पर मसरूफियात हैं इस सिलसिले में हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे। कर रहे हैं और देखिए एक अहम बात यह है, जिस अंदाज के खिताबात आज हुए हैं उसका रोशन ये है कि तमाम तर खुतबों में कौमी यकजहती की बात को दोहराया गया है। तमाम तर खुतबों में यही पैगाम दिया गया है कि इस मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम हो।
तमाम तर खुतबों का जो बुनियादी महवर और मरकज रहा है वो यही रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता कौमी यकजहती को किस अंदाज से इन मुक़द्दस मक़ामात से आगे बढ़ाया जाए, परवान चढ़ाया जाए। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं बता दूं आपको कि मुख्तलिफ मकातिब और नज़रियात को उलमा किराम ने जमा होकर इस पैगाम की तफसील को यकीनी बनाया है। और देखिए, एक बुनियादी बात यही है कि जब हम देखते हैं कि जितने भी आलिम हमारे यहाँ पर आए हैं उन्होंने बार बार एक बात को दोहराया है कि फिरका परस्ती को कम करना है, तासुब को कम करना है, नफरत को कम करना है। और अगर कुछ शरपसंद अनासिर तासुब फैलाना चाहते हैं, नफरत बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी मोहब्बत से जवाब दिया जाए। देखिए, नफरत का जवाब नफरत नहीं है। नफरत के तदारुक के लिए मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है, सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र तहम्मुल से उन तमाम तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है जो जनाब हज़रत गाजी मसूद की तालीमात थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि मोहब्बत के पैगाम को किस अंदाज से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी हमारे खुतबा हैं, उन्होंने सबने आज यही कहा है कि सबसे पहले मुल्क है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान। बेशक आज बहुत अच्छे खुतबात हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस जगह से जो आज जो मैसेजेस निकले हैं वो मैसेजेस ये निकले हैं कि हमें कौमी यकजहती बनाए रखनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बातों को दूर रखना चाहिए और मेल मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे सामाजिक पैगाम है कि जहेज की लानत से को बचना है और भी दूसरी बुराइयां उनसे बचना है, लेकिन इन सबसे बढ़ के हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हिंदू और मुसलमान की बातों से दूर रहना है। और ये बहराइच की सरजमी से ये पैगाम निकलकर पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह फैलने वाला है। बहराइच की सरजमीन से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। वो पैगाम यही है कि हम किसी भी सियासी हरबे में नहीं आना है, किसी भी मजहब या मसलक की बात को नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ उन कदरों को फरोग देना है जिनका बुनियादी उनसुर इंसानियत को फरोग देता है, उन तालीमात पर अमल करना है जो हमें बताती है कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बल्कि इंसानियत है। देखिए, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के बाद की बातें हैं। यही पैगामात आज पूरे उलमाए किराम ने दिए हैं और इन्हीं को यकीनी बनाया गया है। और देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि कुल शरीफ की रस्म थोड़ी देर में अदा होनी है, दुआओं का सिलसिला होना है। अब ये आखिरी खुतबे के जो हमारे मनाजिर हैं वो देख सकते हैं आप। खुतबा अभी अंदर चल रहा है, उसके बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर दुआइया कलमात अदा किए जाएंगे, मुल्क के अमन व अमान की, मुल्क की सलामती की दुआएं की जाएंगी और वो तमाम तर तालीमात के सिलसिले को बदस्ते दुआ दराज किया जाएगा। और ये भी एक बात बता दूंगा, अभी दरगाह कमेटी की जिम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त थोड़ा सा मामले को ताखीर कर दी गई है क्योंकि कुल का टाइम तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि होली का त्यौहार है और दरगाह के बाहर कुछ हमारे जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, भाई हैं, वो होली खेल रहे हैं। तो अगर यहाँ से लोग अमन के साथ जाएंगे, सुकून के शांति के साथ जाएंगे तो ये पैगाम भी चला जाएगा कि उस शरीफ की रस्में भी बाकायदगी से अदा हो गई और लोगों ने होली के त्यौहार को भी बहुत खूब बना लिया। तो देखिए, थोड़ी सी ताकीद की गई थी और ये ताकीद का जो सबब है वो यही है कि कहीं भी कोई दुश्वारी हमारे उन भाइयों को भी पैदा न हो जो होली करेंगे, इस वक्त शराबोर है और यहाँ से जाने वाले जायरीन को भी कोई दुश्वारी न हो, किसी तरह की कोई बदमज़गी न हो। तो मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि अभी कुछ ही देर में, चंद मिनटों के बाद बाकायदा तौर पर दुआ होगी, कुल शरीफ की बाकायदा रसूम अदा कर दी जाएंगी और उसके बाद अमन सुकून के साथ जायरीन की वापसी का सिलसिला बाकायदगी के साथ शुरू हो जाएगा। तो मैं अब इस वक्त अपने कैमरा पर्सन से भी दरखास्त करता हूँ गुलजार साहब से कि वो एक दफा दिखा दें कि देखिए जो चारों तरफ के मनाजिर किस अंदाज से लोग खुतबे को सुन रहे हैं, किस अंदाज से फैज़ हासिल करना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, देखिए कैमरा पर्सन से कि चारों तरफ के मनाजिर अभी इस कैमरे के जरिए आप तक पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग किस अंदाज से खड़े होकर उन तमाम खुतबों को सुन रहे हैं जिनका बुनियादी मकसद कौमी यकजहती का फरोग है, जिनका बुनियादी मकसद इंसानों को इंसान के करीब लाना है, जिनका बुनियादी मकसद उन तालीमात को आम करना है जो हजरत मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से लोग दूर तक, जहां तक भी नजर जाती है, जहां तक कैमरे की निगाहें कैद कर सकती है, वहां तक हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि लोग अमन सुकून के साथ तमाम तरना मसाइद हालात के बाद यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं कि एक पैगाम यहाँ से चला जाए और ये चला जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और तमाम कौमों, तमाम मज़ाहिब, तमाम मकातिब, तमाम नजरियात के लोग जो हैं वो किस अंदाज से यहाँ पर एक साथ जमा हो रहे हैं, किस अंदाज से उन तमाम तर
रसूम की अदायगी में शरीक हो रहे हैं, जो इसका खासा रही है, वसीला रही है। और मैं बता दूं आपको कि ये वो मरकज़ अक़ीदत है कि जहाँ हाज़िरी देने के लिए, जहाँ ज़ियारत करने के लिए सिर्फ एक या दो शहरों से नहीं, एक दो रियासतों से नहीं, बल्कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए, मुख्तलिफ वसीलों से यहाँ तक पहुँचे हैं लोग। और देखिए बात यही है कि होली के बावजूद भी लाखों का मजमा यहाँ देखा जा सकता है। कई गैर मुस्लिम जायरीन से भी हमने बात की तो उन्होंने यही कहा है कि इन मराकज़ से जो पैगाम जाते रहे हैं उनकी अहमियत यही है कि एक तरफ होली के रंग बिखर रहे हैं तो एक तरफ तसव्वुफ ने अपने रंगों को बिखेर दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अवाम यहाँ पर जमा होकर एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि लोग नफरतों से बचें, मोहब्बत के पैगामात को आम करें, उन तमाम पैगामात की तरसील को यकीनी बना दें जिनकी ज़रूरत आज इस मुल्क को है, आज हर बाशिंदे को है, हर मजहब के मानने वाले को है, हर मकतब, हर नजरिए, हर लोगों को है। तो देखिए सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम था, उनके चाहे पैगाम सखावत हो, पैगाम शुजाअत हो, पैगाम अखुवत हो, पैगाम मोहब्बत हो, तमाम तर पैगामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हर इंसान, हर तबके का इंसान आज एक जज्बे के साथ यहाँ हाजिर हुआ है और वो जज्बा यही है कि कैसे हम अपने गहवारा वतन को खूबसूरत बनाएंगे, कैसे इस मुल्क की तामीर और तश्कील में अपना बुनियादी रोल अदा करेंगे, कैसे उन अकाबरीन की तालीम को हम फरोग देंगे जिन्होंने हमें बताया था कि ये मुल्क किसी एक मजहब का मुल्क नहीं है, ये दरसगाहें, ये बारगाहें, ये मरकज़ अक़ीदत, ये मरकज़ मोहब्बत किसी एक मजहब, किसी एक मसलक के नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब, तमाम मकातिब के लोग हमेशा आते रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे। हिंदुस्तान जो एक खूबसूरत मुल्क है अपनी खूबसूरती की नुमाइंदगी मुख्तलिफ हवालों से करता रहेगा। और ये पैगाम आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से देखिए ये मंजर, ये वो मुबारक मुक़द्दस है जिसके जरिए लोग उस फकीर तक पहुँच रहे हैं, उस आस्ताने तक पहुँच रहे हैं। सदियों पहले एक फकीर ने शुजाअत का लिबादा पहनकर यहाँ पर जो अपनी नींद प्यार की थी, वो फकीर सुकून से सो रहा है। वो फकीर आज मनोमुक्ति के नीचे रहते हुए भी पूरे अवाम को यही पैगाम दे रहा है, ए मेरे हिंदुस्तानियों, ए मेरे मुल्क के बाशिंदों, ए मेरे चाहने वालों, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाने की जरूरत है। इन तमाम मराकिज़ से, इन तमाम मराकिज़ से यही पैगाम जानने की जरूरत है कि किस तरह से हम इंसानों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। और देखिए मैं सुबह से ये बात बता रहा हूँ बार बार कि होली का त्यौहार है, बहराइच में हम मौजूद हैं, मुक़द्दस आस्ताने पर मौजूद हैं, बाहर होली खेल रहे हैं हिंदू भाई, कुछ हिंदू भाई हमारे अंदर भी हैं, यहाँ पर मस्त मज़ाहिब के दूसरे लोग भी हैं, लेकिन कहीं कोई नहीं है। पहले ये बात तय कर ली गई है कि आप होली के रंग मनाएंगे, हम तसव्वुफ के रंगों में डूबे रहेंगे, हिंदुस्तान को मुस्तक़बिल पर एक बार फिर इसी तहजीब की नुमाइंदगी करते हुए पेश किया जाएगा जिसके लिए हमारा मुल्क मशहूर है, जिसके लिए इन तमाम तकदीरों की पासदारी जरूरी हो जाती है जो हमारे मुल्क का खासा रही है। मैं बता दूं कि पंजतन पाक के वसीले से हजरत अली के जो कलमात हैं, जो इरशादात हैं, जो फरमूदात हैं, उनके हवाले से भी बहुत सी बातें की गई हैं। फरमान अली यहाँ सोया हुआ है एक फकीर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हजरत अली की तालीमात को अपनी तौर पर अपनी जिंदगी के जरिए पेश किया था। और वही तालीमात आज पूरी दुनिया में इस हवाले से फैल रही हैं कि जब जब फकीरों के आस्थाने पर लोग आए हैं, जब जब यहाँ पर लोगों ने जबीन सआदत खम की है, जब जब अपनी अकीदतों मोहब्बतों के नजराने पेश किए हैं, तब तक मुल्क में खुशगवारी आई है, मुल्क खुशहाल हुआ है, बेहतरी आई है। और यहाँ की फजा जो है वो इस हवाले से बहुत मुअत्तर और मुनज़्ज़म हुई है जिसकी ज़रूरत आज हमारे मुल्क को है, आज पूरे हिंदुस्तान को है। आपको दिखाएंगे कुछ और मनाज़िर कि किस अंदाज से लोग इस सफर को जारी रखे हुए हैं। अक़ीदत और मोहब्बत का ये सफर सदियों से जारी है, हाल में भी जारी है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। आप देखिए कि नीचे से लेके फैस से लेके और छोटे तक लोग किस अंदाज से बैठे हुए हैं। और ये कलमात हैं जो कुछ सदी से पहले जो खुतबात चल रही हैं उनके जरिए ये कलमात पेश किए जा रहे हैं और लोगों को बार बार यही बताया जा रहा है, यही उनको कहा जा रहा है कि आप लोगों को
नफरतें मिटानी है, मोहब्बत से काम लेते हुए दीन को आगे बढ़ाना है और उन नफरतों का खात्मा करना है जो मजहबी बुनियादों पर आपको खानों में तकसीम करना चाहती है। इन नफरतों का खात्मा करना है जो आपको मजहबी खतूत पर एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। तो जाहिर है कि ये वो मनाजिर हैं जो बहराइच की इस मुक़द्दस और मुबारक दरगाह से पूरे मुल्क में सफ़र कर रहे हैं। एक पैगाम है जो पैगाम इंसानियत है, पैगाम मोहब्बत है, पैगाम अखुवत है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आज उनकी जो रसूमात थी उसमें मामूली सी ताख़ीर सिर्फ इस वजह से कर दी गई कि जो बाहर होली का रंग खेला जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि लोग यहाँ से जल्द रवाना हो जाएं और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। हालांकि जो होली खेलने वाले हिंदू भाई हैं, हिंदू हजरात हैं, बिरादरान वतन हैं, उन्होंने भी यही कह दिया है कि हम होली खेल रहे हैं लेकिन आप लोग भी अपने तसव्वुफ के रंगों में डूबे रहिए, कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। और ज़ायरीन ने भी और दरगाह से जुड़े मुंतज़मीन ने भी बार बार यही पैगाम दिया है कि होली खेली जाती रहेगी और ये उससे मुबारक जारी रहेगा। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जो था वो मुसलसल तौर पर इसी अंदाज से जारी रहेगा जैसा गुज़िश्ता कई दिनों से जारी और सारी रहा है। तो देख लीजिए किसी साहिब नजर के हाथ में होगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारा ईमान भी महफूज रहेगा, तुम्हारा तक़वा भी महफूज रहेगा। तो ये मनाज़िर तमाम देख सकते हैं आपको। मिलजुल कर काम करने की मौके बता रहा है और दीन का जो मैसेज है उनका उसे पूरे आलम में इस दर से पहुंचाने की कोशिश बता रहा है। इमाम दरगाह जब तक उर्दू बोल रहे थे मेरे नारा निकल रहा, लेकिन जब इंग्लिश बोलने लगे तो लोगों ने नारा लगा। मुझे खुशी हुई कि हमारे मुल्क में उर्दू से ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यादें मंसूर की वो मंसूर की नमीना बहुत बहुत क्या अल्लाह करे कि कई जमानों के नाम तारीफ हो जाए। इंतजामिया में चलते चलते एक बार किया था आलिम अजमत सैयद शाह अहमद गिलोकी साहब, मोहतरम बकाउल्लाह साहब नायब सदर, अब्दुल्लाह साहब सिरदावर, मोहतरम अब्दुल रहमान साहब बच्चे भाई, दिलशाद अहमद साहब, मोहतरम वसीम गिरानी साहब, मकसूद राइनी साहब और सबके इन तमाम हजरात की बारगाह में मैं 4 जुमला पढ़ देता हूँ, शायद ये जुमला याद रखें। अब किया है कि ज़बान चलने लगी लफ्ज़शाही करने लगे, ज़बान चलने लगी लफ्ज़शाही करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, ज़बान चलने लगी लफ्ज़शाही करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। एक मिनट हुआ। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में, हम चाहेंगे प्रोफेसर साहब इख्तिसार के साथ दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा जअल जमाअना हाज़ा जमअन मरहूमा व ला तजअल मिन्ना शक़िय्यन व ला महरूमा, आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाहुम्मा बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इस वक्त पूरा प्रोग्राम जो है इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अब इस वक्त वहाँ पर मौजूद खित्ते के हर हिस्से में लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ा जो मजमा वहाँ पर है इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह लोग जो है जमा हैं और मज़ीद
लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और खिताबात का सिलसिला जारी है। फैज़ान सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जारी व सारी है, ये आप देख सकते हैं। हम अपने तमाम मुआविनीन के मशकूर हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, हमारी पूरी टीम को उर्स की और अपने मेज़बान सैयद काज़िम शरीफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।